الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عرش بری تک چرچا تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا عرش بری تک چرچا تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا اے ماہ کامل حسن تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام جود و سخا کا پرچم تو ہی زخمی جہاں کا مرہم تو ہی جود و سخا کا پرچم تو ہی زخمی جہاں کا مرہم تو ہی مشکل کشائی تیرا ہی کام خیر البشر پر لاکھوں سلام عرش بری تک چرچا تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کثرۃ الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان عالی شان ہے اللہ پاک کا جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت غربت دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اذ قربا قربانا جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی دوسری کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو فرمایا قال لأقتلنک تو دوسرا بولا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا پہلے والے نے کیا کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے یعنی جس کے دل کے اندر ڈر ہے تقوی ہے قربانی کرنا اللہ رب العزت ان کی قربانی قبول کرتا ہے
قرآن مجید فرقان حمید کا 6واں سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اس میں جس قربانی کا ذکر کیا گیا یہ قربانی حابیل اور قابیل ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام بالکل قریب آ چکے ہیں۔ گلیوں اور گھروں سے جانوروں کی آوازیں چہل پہل سنائی دینے لگی ہے۔ با رونق سما ہے۔ جو خوش نصیب قربانی کی سعادت حاصل کریں گے اللہ پاک ان کی کوششیں قبول فرمائے، اور جو بیچارے اس سال نہیں کر پا رہے رب کریم انہیں بھی توفیق بخشے، طاقت دے تاکہ وہ بھی قربانی کی سعادت پایا کریں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عامل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم، فرمایا یوم نہر یعنی قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا کہ قربانی کرنے سے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمِكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ بے شک حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے۔ فرمایا بس خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے اور حکمت عملی کے ساتھ غریبوں، بے کسوں، یتیموں ان میں گوشت بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، پارہ 6 سورہ مائدہ میں حابیل اور قربانی کا ذکر ہوا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل پہلا بد نصیب ہے جس نے انسانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ کیا، یہی پہلا مشرک بھی ہے، پہلا قاتل بھی ہے۔ حضرت حابیل جو نیک انسان تھے، ان کا اور بد نصیب قابیل کا کسی بات میں جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کا حل حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نکالا کہ تم دونوں قربانی کرو، تم دونوں قربانی کرو،
جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ درست ہوگا، جس کی قبول نہ ہوئی وہ غلطی پر ہوگا۔ اس دور میں دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا جاتی، جو قبول نہ ہوتی آگ اسے چھوڑ دیتی، یعنی اس کو آگ نہیں لگتی تھی۔ چنانچہ حضرت حابیل اور بد نصیب قابیل دونوں نے قربانی کی۔ حضرت حابیل نے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے بڑی خوش دلی کے ساتھ ایک بکری ذبح کی، اور قابیل چونکہ بد ظن تھا، اس کا دل پہلے ہی سیاہ تھا، چنانچہ اس نے مرے دل سے کچھ گندم راہ خدا میں دے دی۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا، یعنی اس کو آگ لگ گئی، مگر قابیل کی دی ہوئی گندم کو یوں ہی چھوڑ دیا، یعنی حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ قابیل جو پہلے ہی دشمنی کے آگ میں جل رہا تھا، یہ دیکھ کر اور بھی آگ بگولا، یعنی غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ تو اب اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل ہی کر ڈالا۔ یہ اس زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابیل پہاڑوں پر چلا گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے حبیب، انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی، دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں کی قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے قربانی کرنے والے دو شخص ہیں، حضرت حابیل اور دوسرا بد نصیب قابیل۔ لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ پتہ چلا محض قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی فکر بھی بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کونو لقبول العمل اشدہما منکم بالعمل۔ فرمایا عمل کرنے سے زیادہ عمل قبول ہونے کی فکر کیا کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ذرہ برابر عمل قبول ہو گیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی قبولیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ الکریم اسی کے صدقے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اگر قبول نہ ہوئی تو ہماری نمازیں، روزے، قربانیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، تو یقین مانے روز قیامت انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بھی نقصان ہے، جو واجب قربانی ادا نہیں کرتا وہ بھی نقصان میں ہے۔ یا اگر یہاں فرمایا گیا کیا سب سے زیادہ نقصان میں جو ہوگا اس کے متعلق خبر نہ دی جائے، یعنی کوئی ہے جو بے نمازی، روزے قضا کرنے والے،
गुनाहगार से भी ज्यादा नुकसान में है। वो कौन है? कुरान मजीद फरमा रहा है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। फरमाया वो लोग जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, हालांकि वो ये गुमान कर रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो शख्स जो समझता रहा मैं तो बढ़िया नेकियां कर रहा हूँ, मुशक्कतें भी उठाता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा, रोजे भी रखता रहा, हज भी करता रहा, लाखों लाख खर्च करके महंगे से महंगे जानवर खरीदता रहा, खरीद कर कुर्बानियां करता रहा। उसका गुमान था कि मेरे पास तो बहुत नेकियां जमा हो चुकी हैं, मगर जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो मालूम होगा ये सब नेकियां तो बर्बाद हो गईं। इनमें तो दिखलावा भी था, इनमें तो शोहरत की तलब भी थी, इनमें तो वो अपनी वाह वाह की ख्वाहिश भी थी। इनमें से कोई भी नेकी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल ना हुई, अब उसे शर्मिंदगी होगी, अब ये हसरत से हाथ मलता रह जाएगा। फरमाया ये है वो शख्स जो सबसे ज्यादा नुकसान में है कि अमल करके भी बख्शिश से महरूम रह गया। मेरे प्यारे नाजरीन, इस्लामी भाइयों, कबूलियत की फिक्र बहुत जरूरी है, वरना जानवर तो क्या अपना गला कटवाना भी अल्लाह पाक की बारगाह से रद्द हो सकता है। एक दिलों को तड़पा देने वाला वाकया सुनिए। सहाबी रसूल हजरत साहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा किसी गजवे का मौका था, गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई चल रही थी। मैंने एक शख्स को देखा, बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा था। जिस गैर मुस्लिम को काफिर को देखता उस पर झपटता, जहन्नम पहुंचा देता। उसका जज्बा, बहादुरी, राह खुदा में जान कुर्बान करने की लगन और मेहनत देखकर सहाबे कराम को उस पर बहुत रश्क आया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मा अजजा अहदुहुम मा अजजा फलान। फरमाया, या रसूलुल्लाह, आज तो अजर फलां बहादुर कमा लेगा, कोई उसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया, इन्नहु मिन अहलिन नार। अल्लाहु अकबर। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में क्या फरमाया? इन्नहु मिन अहलिन नार, यानी वो तो जहन्नमी है। आप अंदाजा कीजिए, सहाबे कराम जिनका एक एक लम्हा नेकियों में गुजरता, सबसे बड़ियों से बड़े औलिया का नाम, जिसके अमल पर रश कर रहे थे, आप सोचिए उसका अमल कैसा होगा। मगर अफसोस, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान हक से क्या अदा हुआ? फरमाया वो तो जहन्नमी है। सहाबे कराम हैरान रह गए। कहा, पूछा, अय्युना मिन अहलिल जन्नति इन कान हाजा मिन अहलिन नार, यानी ये तो राह खुदा में इस बहादुरी से लड़ने वाला भी अगर जहन्नमी है तो फिर हम में से जन्नती हो कौन सकता है? चूंकि जुबान रिसालत से अदा हो गया था कि ये जहन्नमी है। सहाबे कराम के ईमान की तो मिसाल नहीं दी जा सकती। चुनाचे एक सहाबी ने सोचा, ये शख्स अगर जहन्नमी है तो देखूं कि ये करता क्या है। चुनाचे वो उस बहादुर के पीछे लग गए। वो उस बहादुर के पीछे लग गए कि देखें तो सही, लड़ तो हमारे सामने तो काफिरों के साथ लड़ रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, जहन्नम भेज रहा है, लेकिन इसके पीछे ये कैसा अमल, कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से कमली वाले आका ने फरमाया, इन्नहु मिन अहलिन नार, ये तो जहन्नमी है। सहाबे कराम पीछे लग गए, चुप चुप कर देखने लगे। वो गैर मुस्लिमों से लड़ाई कर रहा था, ये छुप कर उसके पीछे पीछे एक एक कदम उस पर निगाह रखे हुए। आखिर जब वो जान की बाजी हार गया तो दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज की, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने जो गैब की खबर इरशाद फरमाई थी वो बिल्कुल सच निकली।
लिहाजा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सहाबा कराम ने पूछा, जो उस बहादुर के पीछे साहबी लग गया, देखूं तो सही क्या करता है, देख रहा था, अचानक दौड़ता हुआ वापस आ गया। जब वो मर गया, जान की बाजी हार गया, आकर कहने लगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर सच निकली, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के पाक के आप सच्चे रसूल हैं। साहबे कराम ने पूछा, मामला क्या हुआ? कहा, मैं उस बहादुर के साथ साथ रहा, वो जंग में बहादुरी से लड़ता रहा, आखिर उसे जख्म आए, आखिर उसे जख्म आए, वो अपने जख्मों का दर्द बर्दाश्त ना कर सका और खुदकशी करके मर गया। ये सुनकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बाज दफा आदमी लोगों के ख्याल के मुताबिक जन्नतियों वाले अमल कर रहा होता है मगर वो जहन्नमी होता है। बाज दफा लोगों के ख्याल के मुताबिक जहन्नमियों वाले अमल कर रहा होता है जबकि वो जन्नती होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए, लाख, 2 लाख, 10 लाख का जानवर नहीं, बल्कि वो शख्स जो हकीकत में मुनाफिक था, खुद मैदान जंग में उतरा हुआ है, तलवार चला रहा है, जान हथेली पर रखी हुई है, गैर मुस्लिमों को, काफिरों को गाजर मूली की तरह काट रहा है, उसके बावजूद वो जहन्नम का हकदार हो गया। सोचिए, हमारी मामूली सी कुर्बानी क्यों रद्द नहीं की जा सकती? इसलिए हमें चाहिए कि हम कुर्बानी भी करें, लाजमी करें, जरूर करें, इसके साथ साथ उसकी कबूलियत की फिक्र में भी लग जाएं। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल फरमाता है। पता चला, कुर्बानी को कबूलियत के लायक बनाने के लिए तकवा इख्तियार करना जरूरी है। यहां मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, कुर्बानी में 3 चीजें हैं, कुर्बानी का गोश्त, खून और तकवा। कुरान का दस्तूर देखिए क्या है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लन यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के यहाँ हरगिज ना उनके गोश्त पहुंचते हैं ना उनके खून, अलबत्ता हमारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुंचती है। यानी गोश्त तो वो है जो हम कुछ बांट देंगे, कुछ पकाएंगे, खाएंगे, कुर्बानी का खून जमीन चूस जाएगी। एक तकवा है जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होकर कबूलियत का दर्जा पाएगा। अफसोस, अब हमारे हालात यूं हो गए हैं कि वो चीजें जो अल्लाह पाक की बारगाह में नहीं पहुंचेगी उनका खूब एहतमाम होता है। जानवर खरीदते वक्त देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, गोश्त कितना निकल आएगा। अब तो मवेशी मंडियों में तराजू भी रखने लगे हैं, बाकायदा जानवर तोल कर लिया जाता है। कुर्बानी करने के बाद आपस में तबसरे भी होते हैं, तुम्हारे जानवर का कितना गोश्त निकला, हमारे जानवर का गोश्त इतना निकला। गोश्त बनाने से मुतालिक कसाब को नसीहतें होती हैं, बोटियां छोटी छोटी और गोल गोल बनाना। बावर्ची खाने में फरमाइशें की जाती हैं, आज कोरमा बना लो, आज बीफ पुलाव बना लो। फ्रिज वगैरह में गोश्त स्टोर कर लिया जाता है। बाजारों में कीमा करने वाली मशीनें भी लग जाती हैं। कुर्बानी के दिन आने से पहले ही मिर्च मिसाला जात खरीद लिए जाते हैं कि ईद आ रही है, गोश्त पकाना है। दोस्त यार मिलकर बारबेक्यू की पार्टियां भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये सब एहतमाम करना गलत है या गुनाह है, नहीं, ये सब एहतमाम बिल्कुल जायज हैं। कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मगर मैं तवज्जो ये दिलाना चाह रहा हूं कि ये वो चीज है जिसके मुतालिक कुरान ने साफ फरमा दिया, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह के यहाँ हरगिज ना उनके गोश्त पहुंचते हैं। यानी वो चीज जो कबूलियत का मियार नहीं, उसके लिए हम इतने सारे एहतमाम करते हैं। अब वो चीज जो कबूलियत का मियार है, जिसके मुतालिक फरमाया गया
कुरान कह रहा है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुंचती है। यानी तकवा, इसके मुतालिक हम क्या एहतमाम करते हैं। अफसोस बहुत सारों की इस जानिब बिल्कुल तवज्जो ही नहीं होती। जानवर जो अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होंगे उन्हें ऐसी ऐसी तकलीफें पहुंचाई जाती हैं कि बस अल्लाह पाक की पनाह। एक ही गाड़ी में काफी सारे जानवर लोड कर देते हैं, बेचारों से ठीक तरह खड़ा भी नहीं हुआ जाता। गाड़ी से उतारते वक्त बहुत सख्त अंदाज होता है, जानवरों को खींचा जाता है। बाज दफा घर लाने के बाद जानवर बच्चों के हवाले कर दिए जाते हैं, बच्चे उन्हें गलियों में भगाते फिरते हैं। जानवर पालना भी एक फन है। अमूमन हम लोग जानवर पालते नहीं, कुर्बानी के मौके पर घर जानवर आते हैं, अब उनके चारा पानी का ख्याल रख पाने की समझ पूरी नहीं होती। बाज दफा हमारी गलतियों की वजह से जानवर बीमार भी हो जाते हैं, फिर जानवर बांधने का हमारा स्टाइल गलियों ही में बांध देंगे। ऊंट या गाय खरीदी, चूंकि जनाब साहिब कुर्बानी कर रहे हैं लिहाजा गली की दोनों जानिब कनाते लग जाएंगी, रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने वालों को तकलीफ होती रहेगी। कुर्बानी करते वक्त खून यूं ही गलियों में बहा दिया जाता है, आने जाने वालों को गुजरने में परेशानी होती है। ओजड़ी और आंतें वगैरह जो फेंकने के हिस्से होते हैं वो यूं ही फेंक दिए जाते हैं, हालांकि म्यूनिसिपल वालों की जानिब से बाकायदा नोटिस जारी किए जाते हैं, इसके बावजूद लोग एहतियात नहीं करते। अफसोस कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी करते हुए भी हमारी नमाजें कज़ा हो रही होती हैं। दोस्त अहबाब मिलकर जब ईद मिलन पार्टी रखते हैं तो म्यूजिक भी बजता है, गाने बाजे भी सुने जाते हैं और भी गुनाहों का सिलसिला होता है। अफसोस ये हमारे तकवे का हाल है। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक मुत्तकी भी परहेजगार भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, अलबत्ता बेएहतियातियां करने वालों की भी बड़ी तादाद है। कुरान करीम में साफ फरमा दिया गया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल फरमाता है। ये आयत हमें सबक दे रही है कि अपनी कुर्बानी को कबूलियत के लायक बनाने के लिए तकवा के तकाज़ों पर अमल करना जरूरी है। मसलन कसाब के साथ मुआमला तय करने में इजारे के शरई उसूल पेश नजर रखिए। कसाब की उजरत पूरी पूरी बर वक्त दे दीजिए। कुर्बानी के जानवर बांधने और कुर्बानी करने के लिए अवामी रास्ते बंद मत कीजिए। गलियों में खून यूं ही बहाना मत छोड़िए। खून बहकर गली में चला जाए तो उसे अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा कर दीजिए। ओजड़ी और जानवर की आंतें, पेट से निकलने वाली गंदगी वगैरह इसी तरह गली में ना डालिए, बल्कि म्यूनिसिपल कमेटी वालों की हिदायत पर अमल कीजिए। गर्द कुर्बानी करने में तहारत और पाकीज़गी, सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखा जाए। इज्तमाई कुर्बानी की सूरत में गोश्त की तकसीम शरई असूलों के आयन मुताबिक की जाए, किसी का भी हक ज़ाय ना होने दिया जाए। कुर्बानी की खाल देने का अगर किसी से वादा किया है तो उसे बार बार चक्कर ना लगवाइए। बाज नादान कुर्बानी की आड़ में माआज अल्लाह जमात छोड़ते हैं, बल्कि नमाज तो कज़ा ही कर डालते हैं। उनके बहाने होते हैं कि कसाब देर से आया था, कुर्बानी करते करते जमात गुजर गई, कपड़ों पर खून लगा था इसीलिए नमाज ही कज़ा हो गई। गर्ज हर वो काम जो गुनाह है या जिसकी वजह से गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा है, उस काम से बचना तकवा का तकाजा है। और कुर्बानी में तकवा के तकाजों पर अमल करना कुर्बानी को बारगाह इलाही में कबूलियत के लायक बनाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकवा के तकाजों में से ही है कि कुर्बानी करने में जज्बा इखलास भी हो, जज्बा इसार भी हो, अल्लाह पाक की रजा के लिए तन मन धन लुटा देने का अज़म भी हो। जब जानवर के गले पर छुरी रखी जाए तो बंदा मोहब्बत इलाही से सरशार हो, दिल ही दिल में अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज कर रहा हो, मौला
जानवर की कुर्बानी का हुक्म हुआ, मैं तेरी रजा के लिए जानवर कुर्बान करता हूँ। इलाही नफ्सियात नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके तेरी रजा वाले काम करना भी मैं तुझे महबूब है। मौला, आज से तेरी रजा के लिए नफ्स अम्मारा को भी मारता हूँ। आज के बाद कभी नफ्स और शैतान के बहकामे में आकर तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, आज तेरे हुक्म से जानवर कुर्बान कर रहा हूँ। तेरी रजा के लिए, तेरे दीन की खातिर वक्त की भी कुर्बानी दिया करूंगा। मौला, जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह पुकारेगा तो नींद की, अपनी दुकान की, कारोबार की, दुनियावी कामकाज की कुर्बानी देकर फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाया करूंगा। बल्कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह पाक, नफ्स की ख्वाहिशात, वक्त और माल वगैरह तो क्या, तेरी रजा की खातिर अगर मुझसे जान की कुर्बानी भी मांगी जाए तो हरगिज पीछे नहीं रहूंगा। बल्कि ये एक जान क्या है अगर हूं करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी बातें हैं जो राह कबूलियत में रुकावट बनती हैं। हमारी कुर्बानी और दीगर नेक काम कबूल हो जाएं, उनके लिए उन रुकावटों से बचना भी जरूरी है। चंद रुकावटें सुनिए। कुरान करीम में मुनाफिकों से मुतालिक इरशाद हुआ, वमा मनअहुम अन तुकबल मिनहुम नफकातुहुम इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यातून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून। और उनके सदकात कबूल किए जाने से ये बात माने है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और वो नमाज की तरफ सुस्ती और काहिली से ही आते हैं और नागवारी से ही माल खर्च करते हैं। यानी मुनाफिकों की सदकात, राह खुदा में खर्च की गई रकम कुछ भी कबूल नहीं, सब मरदूद है। क्यों? 3 वजह से। ये अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते, नमाजों पर सुस्ती करते हैं, जो भी राह खुदा में खर्च करते हैं खुश दिली से नहीं करते। प्यारे इस्लामी भाइयों, सदकात और कुर्बानियां वगैरह कबूल ना होने की ये 3 वजूहात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली वजह से तो हम महफूज हैं, यानी अल्लाह पाक के फजल से हमें ईमान नसीब है। हम अल्लाह पाक पर और उसके आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान रखते हैं। अल्लाह पाक हमें इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। नमाज का ख्याल रखिए। मुनाफिकों के सदकात कबूल ना होने की दूसरी वजह इरशाद हुई, वला यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, वो नमाज की तरफ सुस्ती और काहली से ही आते हैं। पता चला नमाजों में सुस्ती भी कबूलियत की राह में रुकावट है। अफसोस, अब हमारे यहाँ नमाजों की पाबंदी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं, कम होती जा रही है। बिलखसूस ईद के मौके पर तो बेचारे इमाम साहब को नमाजी ढूंढने पड़ते हैं। पक्के नमाजी जो 5 वक्त की नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करते हैं, ईद वाले दिन वो भी मुयस्सर नहीं आते। बात तो रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के लिए बैरून शहर चले जाते हैं। बाद नादान ईद की मसरूफियात के सबब नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं। काश हमें तौफीक मिले, ईद वाले दिन भी 5 नमाजें मस्जिद में बाजमात अदा कर पाएं। हदीस पाक में है, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेवफाई, पूरी की पूरी बेवफाई कुफर और मुनाफकत है। कि आदमी अजान देने वाले को सुने जो नमाज के लिए बुलाता हो, फलाह कामयाबी की दावत दे रहा हो, और वो उसकी दावत को कबूल ना करे। आप गौर करिए, ईद वाले दिन अजान की आवाज आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। मुअज्जिन साहब, इमाम साहब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, अजाने दे रहे होते हैं। जब हमें आवाज आ रही है, मस्जिद खुली है, तो हम मस्जिद में क्यों नहीं आते? लिहाजा ईद वाले दिन भी आप जहां भी हों, अपने करीबी मस्जिद में पहुंचकर लाजमी नमाज बाजमात अदा फरमा लीजिए। देखिए ना, 5 लाख का जानवर खरीदा, 5-10 दिन उसकी खिदमत की, चारा पानी डाला, उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रखे, कटवाने के लिए कसाब की फीस भरी, काफी सारे काम छोड़े,
मसरूफियात बढ़ा ली। अब ईद वाले दिन जब कुर्बानी करनी है, महज 1.5-2 घंटे की मेहनत यानी नमाजों से जी चुरा कर, सुस्ती दिखाकर आदमी अपनी सारी मेहनत को जाय करने का सामान कर ले तो ये कितना बड़ा नुकसान है। मैं नहीं बल्कि कुरान मजीद कह रहा है कि मुनाफिक चूंकि नमाजों में सुस्ती करते थे, लिहाजा उनके सदकात कबूल ना हुए। अल्लाह पाक हमें नमाजों की पाबंदी और नमाजों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। मुनाफिकों के सदकात कबूल ना होने का तीसरा सबब इरशाद हुआ, वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, और नागवारी से ही माल खर्च करते हैं। पता चला खुश दिली से सदका खैरात और कुर्बानी वगैरह ना करना भी कबूलियत की राह में रुकावट है। अफसोस हमारे यहाँ बाजों की कैफियत ऐसी बनती है कि कुर्बानी करनी तो नहीं थी, क्योंकि मालिक नसाब थे, साहिब नसाब था, कुर्बानी वाजिब हो गई थी, लिहाजा करनी पड़ी। आज के दौर में ये भी एक गनीमत है कि चलो अल्लाह पाक का हुक्म मान तो लिया, साहिब नसाब हो गए थे, कुर्बानी वाजिब हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब अदा तो कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मगर हमें चाहिए कि कुर्बानी कर रहे हैं तो मजबूरन नहीं बल्कि खुशी खुशी करें। जब कुर्बानी कर रहे हों तो दिल में खुशी होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने रब की रजा के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो जाता है। फतीबू बिहा नफ्सा, बस खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। रिवायत में आता है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को मना में ले गए, उन्हें अपना पूरा ख्वाब सुनाया, इरशाद फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अय मेरे बेटे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। किताबों में लिखा है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, उस वक्त शहजादे का चेहरा जगमगाने लगा, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है, ये चेहरे पर कैसी चमक है, जिस्म पर कपकपी क्यों है। अब शहजादे का जरा जवाब सुनिए। आपने अर्ज की, अब्बू जान, मैं कुर्बान हो जाऊं तो अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, इस फानी दुनिया से जुदा होकर जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक ने मेरे मुतालिक ये हुक्म इसीलिए तो दिया है कि वो रब करीम मुझसे राजी है। बेशक रब के यहाँ जो नेमतें तैयार हैं वो इस दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इस सब से बेहतर है। बस इसी खुशी से चेहरा दमक रहा था। ईद कुर्बान जज्बा इसार का इजहार है, ये इताअत का खलीलुल्लाह की मेयार है ये तस्लीमो रजा की एक लाफानी मिसाल, जान देने के लिए फर्जंद भी तैयार है, बाप का हुस्ने अमल, बेटे का ज़ौक़े इत्तबा, इस मिसाली दास्तान का मरकजी किरदार है। कुर्बानी मजबूरी से ना करें बल्कि खुश दिली से करें, दिल झूम रहा हो, काश अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में जोश मार रही हो, दिल ही दिल में ये जज्बा उभर रहा हो। अल्लाह पाक ने हमें हुक्म तो दिया, जानवर रब के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ, अगर हुक्म हो जाता तो अपनी जान भी कुर्बान करने से हरगिज पीछे ना हटता। एक हसरत हो, दिल में चुभन सी हो कि कितना खुश नसीब जानवर है, अपने रब के नाम पर कुर्बान हो रहा है, काश मैं भी अपने रब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर जाऊं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह पाक के फजल से हम कुर्बानी की सआदत हासिल कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ कुर्बानी को कबूलियत के लायक बनाने की भी भरपूर कोशिश कीजिए। उसके लिए हमने चंद काम करने हैं। तकवा अपनाना है, यानी गुनाहों से बचना है, रियाकारी, रिश्वत, झूठ, गाने सुनकर लज्जत उठाने, दूसरों को धोखा देने जैसे बुरे कामों से भी बचना है।
نمازوں میں سستی نہیں کرنی، قربانی خوش دلی سے کرنے کی سعادت پانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔